کشمیر لائف کے اس لائیو سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ کشمیر جیسی جگہ میں گورنمنٹ جاب حاصل کرنا ایک خواب بن گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص گورنمنٹ جاب سے ریزائن دیتا ہے تو یہ کتنا بڑا رسک ہے، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے اس لائیو سیشن میں ہم نے مدعو کیا ہے مختار صاحب کو، جو ضلع کوپواڑہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 16 سال تک سرکاری نوکری کرنے کے بعد پری میچور ریٹائرمنٹ لیا، اس کے بعد بزنس کے میدان میں قدم رکھا، اور آج کے وقت میں یہ ایک بڑے برانڈ کے مالک جو کہ مختار ایگرو کے نام سے ہیں، ان کے مالک ہیں۔ تو مختار صاحب، آپ کا استقبال ہے کشمیر لائف کی لائیو سیشن میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زراعتی زندگی کے بارے میں، اور جو بیسک سکولنگ ہے وہ کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ جی، میری پیدائش ہے 1962، 1 جنوری 1962 میری ڈیٹ آف برتھ ہے۔ تو 5 سال کا میں تھا جب میں اسکول گیا۔ یہاں سے ہمارا اسکول قاری ہما گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھا۔ تو وہاں 2.5 کلومیٹر ہمارے گھر سے 2.5 کلومیٹر تھا یہ اسکول۔ جنگل کے بیچ سے ہم جاتے تھے اسکول تک۔ تو میرا بچپن وہاں سے ہی اسکول کی میری شروع ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول قاری ہما سے۔ جو یہ آپ کو سرکاری نوکری ملی تھی 16 سال تک، یہ جاب کرنے کے بعد آپ نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی، اس کا وہ سفر آپ بریفلی بتائیے کہ وہ کیسے گزرا؟ بنیادی طور پر مجھے بچپن جو میں نے نوکری، مجھے قریب میں 19 سال کا تھا جب میں پولیس میں اپوائنٹ ہوا۔ تو میں نے پولیس میں 24 سال نوکری کی، 16 سال نہیں 24 سال میں نے پولیس میں نوکری کی۔ تو 24 سال جو میں نے ایکچولی جو مجھے شوق تھا بچپن سے ایگریکلچر کی طرف، میرا بچپن سے دھیان تھا، پھولوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، یہ مجھے بہت زیادہ اس کی طرف میرا دھیان تھا زیادہ۔ تو ویسے ایک پولیس افسر، اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں بھی ایبسنٹ تھا۔ تو میں نے وہاں بھی اچھی پوسٹوں پر نوکری کی پوسٹوں پر میں نے نوکری کی، جہاں بھی میں گیا اللہ کا شکر ہے میں کامیاب رہا۔ تو میں نے وہاں بھی عزت کمائی، افسر بھی مجھے ریسپیکٹ دیتے تھے، لوگ بھی مجھے ریسپیکٹ دیتے تھے، لیکن میرا دل پولیس میں کم ہی لگتا تھا۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نوکری کرنے سے پہلے اور نوکری کرنے کے بعد ان سروس بھی آپ جو ریلیجیس بکس ہے ان کا آپ نے مطالعہ بہت زیادہ کیا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ میں نے ریلیجیس بکوں کا بھی زیادہ مطالعہ کیا، اور جنرل نالج بھی میں پڑھتا رہا۔ تو سائنس کی طرف بھی میرا دھیان بہت زیادہ تھا، تو ہسٹری کی طرف بھی زیادہ میرا دھیان رہا ہے، اور علم طب کی طرف بھی میرا دھیان اچھا خاصا رہا ہے اس دوران۔ اچھا، جو اب آج کے دور میں آپ بزنس کے فیلڈ میں بہت آگے جا رہے ہیں اور نام بھی کمایا ہے، اصل میں شروعات کہاں سے ہوئی اس کی؟ میں سوچا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ میں روزگار مجھے ملے، تاکہ میں اپنے بال بچوں کو تعلیم دے سکوں، اچھی تعلیم دے دوں ان کو۔ مجھے یہ شوق بچپن سے تھا کہ میرے بچے یونیورسٹی لیول تک پڑھے۔ جو نوکری میں مجھے تنخواہ ملتی تھی ان دنوں، میرے 5 بچے تھے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنا زیادہ تنخواہ ہے نہیں کہ میں سب بچوں کو پڑھا سکوں یونیورسٹی لیول تک۔ تو ادھر سے میرا شوق بھی تھا ایگریکلچر کی طرف۔ تو میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں پرمیچور ریٹائرمنٹ لوں گا یہاں سے۔ تو جو میری باقی زندگی ہے، میں انجوائے کرنا چاہتا تھا زندگی میں، ہارڈ ورک بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی زندگی کو میں انجوائے بھی میں کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ نوکری میں، خاص کر پولیس نوکری میں دن رات ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، تو میں سوچا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ چونکہ ہر کوئی نوکری ڈھونڈتا ہے، تو جو میرا شوق تھا، میرا یہ شوق تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آؤں، میں ایسے کام کروں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ میرا بنیادی شوق یہ میرا تھا۔ تو اس دوران میں نے ایک بار ایک سٹوری پڑھی تھی ریڈیو چینل سے، تو اس سے بھی میں بڑا ہوا مطمئن کہ ایک آدمی نے ایک ایسے انقلاب لایا جنوبی چین میں۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں اب ریٹائرمنٹ لوں گا اور باقی زندگی میں لوگوں کی بہبودی، لوگوں کی غریبی کو دور کرنے کے لیے خرچ کروں گا۔ اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ بھی ہم نے سنا کہ شروعات میں آپ نے 5-20 کالونیز لائے تھے، اور آج کے زمانے ایکچولی میں نے پولیس نوکری کے دوران ہی 5-6 کالونیز میں نے لے لی شوقیہ طور پر۔ تو میری ڈیوٹی تھی ایس پی آفس کوپوارہ میں، وہاں ہی دائیں بائیں میں رکھتا تھا وہ اپنی 20 کالونیز۔ تو تھوڑا سا میں نے سیکھا، وہاں زیادہ نہیں سیکھا۔ تو جب میں نے ریٹائرمنٹ لے لیا پھر 2006 میں،
उस वक्त मेरी सर्विस थी 24 साल। तो मैं नौकरी छोड़कर मैंने पहले 5 कॉलोनी से स्टार्ट किया था नौकरी से पहले, फिर मैंने 10-20, जब मैं रिटायर आ गया 2006 में मेरे पास 22 कॉलोनियां थी, बी कॉलोनीज। तो मैंने माइग्रेशन के पहले साल यहाँ कश्मीर से जम्मू की तरफ, जम्मू में मुझे खुशकिस्मती से एक उस्ताद मिल गया, वो जिला अनंतनाग के रहने वाले थे, अब्दुल गनी डार। वो वादी कश्मीर का माना हुआ बी कीपर था, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। दरअसल अगर वो उस्ताद मुझे नहीं मिलते तो जो मुझे आज तक, जो मैंने ज्यादा इसमें फायदा कमाया, जो मैंने इसमें ज्यादा पैसा कमाया, उसमें अब्दुल गनी डार साहब का, मरहूम का बड़ा हाथ है। अच्छा, आज के ज़माने में आपके पास कितने बी कॉलोनीज हैं और आपका प्लांट कहाँ पे है? प्रोडक्शन क्या रहती है एनुअली, और इस साल क्या प्रोडक्शन रही हानि की अगर हम बात करें? कश्मीर में हम 3-4 बार भी हमें यहाँ शहद की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, 3-4 बार भी, अगर मौसम हमें सपोर्ट करे। तो यहाँ हम सेब जब सेब के फूल खिलते हैं उस वक्त भी हमें आ सकता है एक क्रॉप। तो दूसरा क्रॉप हम लेते हैं मई में, जब ये किकर के फूल खिलते हैं, अकेशा के फूल जब खिलते हैं, उस बार भी हमें एक क्रॉप मिल सकता है। जुलाई अगस्त में हम यहाँ दिलीकूट, जहाँ हमारा आबाई घर है, यहाँ हमारा वसी फॉरेस्ट एरिया है, और हमारा फॉरेस्ट जो है वो डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ बहुत फूल, जंगल में फूल होते हैं, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ हमें जुलाई अगस्त में एक शहद आता है, वो ब्लैक हनी। तो अगर मौसम में सपोर्ट किया था, ब्लैक हनी भी अच्छी तादाद में आता है हमें। तो लास्ट क्रॉप आता है हमारा यहाँ सुलाई का, उस वक्त हमें माइग्रेशन करनी पड़ती है जुरहमा आवरा की तरफ सितंबर में। वो उस वक्त हमें चौथा क्रॉप भी आ सकता है, लेकिन शर्त है कि मौसम सपोर्ट करे हमें। मेरे प्रोडक्शन क्या रहती है? मेरे पास इस वक्त 200 कॉलोनियां हैं, तो प्रोडक्शन हमारी अच्छी खासी, अल्लाह का शुक्र है, 40-50 क्विंटल तक हमें निकलता है शहद यहाँ होने के बाद। जी। और जो जम्मू में आपका प्लांट है, वहां पर कितना टोटल प्रोडक्शन है? हम 6 महीने कश्मीर में होते हैं और 6 महीने होते हैं हम जम्मू से राजस्थान तक। इस वक्त मेरा फार्म राजस्थान में, वहां एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम इस वक्त। ठीक। वहां मुझे 3 लड़के जी। राजस्थान में मेरे 3, मेरा बड़ा बेटा है, एम.कॉम किया उसने, तो उसके साथ और 2 लड़के हैं वहां। तो फार्म हमने वहां शिफ्ट किया, फिर फरवरी में हम लाते हैं फार्म को राजस्थान से जम्मू। फिर जम्मू में भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर एंडिंग अप्रैल में लाते हैं फार्म यहाँ कश्मीर में। ये जो टोटल हनी प्रोडक्शन है, उसमें कितने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं इस प्रोडक्शन, इस काम में, हनी का काम में? हाँ, मेरे साथ इस वक्त करीब हम कुल मिलाकर 9 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। 3 लड़के मेरे साथ जो हैं, वो तो प्रोडक्शन साइड में 3 लड़के हैं, तो प्रोसेसिंग में हमारे 3 लड़के हैं, 4 लड़के हमारे प्रोसेसिंग और पैकिंग साइड में, तो 2 आदमी हम मार्केटिंग करते हैं इसकी। हनी के बाद आपने स्टार्ट किया था फ्लोरिकल्चर का काम? जी हाँ, हनी के साथ मैंने सोचा कि जब मैंने हम हनी करते थे, मैंने सोचा कि अब हम बेकार कुछ टाइम हमारे पास बचता था कि जिसमें हमें काम नहीं होता था। एक्चुअली पहले मैंने खुद ही ये स्टार्ट किया, मेरे बच्चे तब तक स्कूल में ही पढ़ते थे, तो जब बच्चे थोड़ा बालिग हो गए, बड़े हो गए, ये ग्रेजुएशन लेवल में मेरा बड़ा बेटा आ गया, तो उसको भी बचपन से इसकी तरफ ध्यान रहा। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो उसको भी बचपन से ही इसकी तरफ उसका ध्यान था, बी कीपिंग की तरफ। तो वो भी शौकिया तौर करने लगा ये काम में, उसने मुझे हमेशा हाथ बटाया इस काम में। तो चलते उसकी भी बड़ी इंटरेस्ट बन गई इसमें, बी कीपिंग में उसकी भी बड़ी इंटरेस्ट बन गई। तो ये बी कीपिंग का जो मामला, ये एक्चुअली बड़ा डटी जॉब है ये, लेकिन अगर इंटरेस्ट हो तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई सख्त से सख्त काम भी हो, अगर इंसान इंटरेस्टेड हो तो सख्त काम इंसान को आसान लगता है। तो ये फ्लोरिकल्चर जो है, उसमें आपने एक 2 चीजें ऐड की थी, जिसमें जब हम जम्मू से वापस आते थे तो फिर हम यहाँ कॉलोनियां लगाते थे कहीं फील्ड में, बस 10-20 दिन हमें काम होता था, बाद में हम रहते थे बेकार। तो मैंने सोचा मैं और कोई काम करूं ताकि मेरी थोड़ी बिजनेस भी बढ़े, तो बेकार भी न रहे हम। तो मैंने फ्लोरिकल्चर किया था स्टार्ट, करीब 2012 में मैंने पहले लगाया था मैरीगोल्ड मैंने लगाया था 50 कनाल जमीन में उस वक्त।
वो मैंने लीज पर लिए थी 50 कनाल जमीन। तो मैंने 50 कनाल में बनाया था मैरीगोल्ड, लेकिन उस साल कुछ ऐसे हालात हो गए तो मैं वो उसकी नहीं कर सका, मार्केटिंग में नहीं कर सका उस गेंदे की। तो दूसरे साल मैंने फिर किया गैलेडोलिस, तो उसमें भी मैं नाकाम ही रहा। तीसरे साल से मैंने बनाई ये पनीरी, जो यहाँ पार्क में लगाते हैं फूल पौधे वौधे। तो मैंने उस वक्त 8,000 से ये काम स्टार्ट किया था। तो पहले साल मैं नहीं बेच सका अपनी वो सीडलिंग्स। तो पहले साल जो 8,000 की मैंने सीडलिंग्स बनाई थी वो मैंने लोगों में फ्री तकसीम की। मैं स्कूल में गया, कॉलेजों में गया, लोगों के पास गया, मैंने बोला कि मैंने हाइब्रिड सीडलिंग्स बनाए हैं जो इंपोर्ट करके लाए थे हमने, वो बीज। मैंने उनको बोला आप ले लो इस साल, आप देखो अगर ये फूल अच्छे हैं तो आप अगले साल मुझे ऑर्डर देना। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने मुझे रेस्पॉन्स दे दिया। अगले साल मुझे लोगों ने ऑर्डर्स दे दिए, तो मैंने दोबारा 10,000 के बीज मैंने लाए थे इंपोर्ट सीड। तो वो 10,000 भी मेरा सेल हो गया। तो श्रीनगर से भी मुझे 50-60,000 की दोबारा वो सीडलिंग्स लानी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सीजन में मैं कम से कम 1 लाख रुपए का सीड 2 सीजन में, सितंबर में और मार्च अप्रैल में हम 50-50,000 का सीड बोते हैं। तो इसके साथ इसमें मेरे 3-4 लड़के 5 आदमी तक मेरे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ग्रीन हाउस हमने बनाए हैं 20 फीट के और 90 फीट के। तो उसमें हम बनाते हैं ये सीडलिंग्स फूलों की और पनीरी बनाते हैं हाइब्रिड सब्जियों की। तो इस काम के साथ साथ 8 लेबर्स में उस वक्त इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे इस काम में। तो कुपवारा में मैंने एक सेल काउंटर भी लगाया है, वहां हम ये सीडलिंग्स भी बेचते हैं, फूलों की भी और सब्जियों की भी। इस फ्लोरिकल्चर में स्टार्ट करने के बाद उसमें आपने एक मेडिसिन प्लांट भी स्टार्ट किया, वो क्या था और वो आज के डेट में वो क्या, वो आप इसकी प्रोडक्शन करते हो या नहीं? मेडिसिन प्लांट्स हम बहुत कम ही लगाते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ी सी अपनी मैं रिसर्च बचपन से, एक्चुअली में जो हमारे आबा अजदाद थे वो उनका पेशा था हिकमत। उस टाइम में वो पहाड़ों से लाते थे जड़ी बूटियां, फिर साल भर यहाँ लोगों को इलाज करते थे उन्हीं जड़ी बूटियों से। मेरी बचपन की बात है ये। तो मैं उन दिनों सोचता था कि जो हमारे आबा अजदाद पहाड़ों से लाते हैं जड़ी बूटियां, अगर हम इनको यहाँ ग्रो करते। तो 2-4-5 साल पहले से मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा कुछ प्लांट्स मैंने लाए ऊंचे पहाड़ों से लाकर। तो उसमें थोड़ा सा मैं कामयाब हो गया। मैंने कुछ जड़ी बूटियां यहाँ अपने हर्बल गार्डन में मैंने जो पहाड़ों से लाई थी हमने सीड्स या कुछ वो बल्ब जड़ी बूटियों के, तो थोड़ा सा मैं उसमें कामयाब हो गया 50-60-80% तक। पहाड़ों पर कुछ कीमती जड़ी बूटियां तो वो तो अब यहाँ भी ग्रो हो रही हैं शेड नेट के नीचे, लेकिन बड़ा अभी उसमें ज्यादा कामयाब नहीं हुआ मैं। मुख्तार साहब, हमने ये भी सुना कि जो आप हर साल जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो या एपीकल्चर हो, वो आप चेंज करते रहते हैं खाली इस गर्ज से ताकि वो भी ये काम सीखे और वो भी इस काम में मुलव्वस हो, अपना काम स्टार्ट करे। ये कहाँ तक ये सही है? एक्चुअली मेरी ये कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लड़कों को ट्रेंड करूं, तो ज्यादा से ज्यादा लड़के अपने पांव पर खड़े हो जाएं। तो हमारे गांव में जो मैंने सब्जियों का काम स्टार्ट किया था और फूलों का काम स्टार्ट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में करीब 10 से 15 लड़के सब्जियां उगाते हैं और सब्जियों की उनकी अच्छी प्रोडक्शन भी होती है और मार्केटिंग भी करते हैं वो। तो उसमें 10-15 लड़के काम करते हैं हमारे अपने गाँव के। अगर हम ये कुपवारा की बात करें, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कामों में मुलव्वस हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल रहता है? क्या आपको टाइम पे सपोर्ट मिलता है? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, या मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है इन कामों में? क्या आपको वो वक्त पे फराहम किया जाता है या नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली जो मैंने एग्रीकल्चर में मैं तो पहला इनोवेटिव फार्मर हूँ यहाँ कुपवारा का, बल्कि कश्मीर का। मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सकास्ट ने दिया था एक रिवार्ड, फर्स्ट इनोवेटिव फार्मर ऑफ के स्टेट। तो मैं पिछले 10-12 साल से करता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मैं ये केमिकल खाद या केमिकल दवाइयां मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ। मैंने खुद बनाई हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स घास से मैंने तैयार की हैं। तो हमें बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद हम वर्मी कंपोस्ट हम खुद बनाते हैं। एक पौधे को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वर्मी कंपोस्ट में। तो वर्मी कंपोस्ट हम घर में बनाते हैं। हम 2 गाय रखते हैं घर में, पोल्ट्री फार्म हमारा है। काफी वेस्ट होता है हमारा, ये काव डंग भी होता है हमारे पास काफी। और हम मेरे पास ऑर्गेनिक में करता हूँ। ऑर्गेनिक मैंने बर्ड्स रखे हैं, ये फ्री रेंज पोल्ट्री मैंने रखी है तो 600 बर्ड्स। तो
ये हम बाजार से खाद वाद नहीं लाते हैं, ना वो इस्तेमाल करते हैं, हम सब कुछ अपना ही बनाते हैं अपने घर में। वो कितना ठीक रहता है जो आप घर में ये खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, वो कितना ठीक होता है एज कम्पेयर टू जो हम बाहर से लाते हैं? उसका फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो हम घर में वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं ना खाद, एक पौधे को करीब करीब 24 न्यूट्रंट्स की जरूरत पड़ती है। जो जब हम काउ डंग को मैं ये करते हैं यूज अर्थवार्म, तो काउ डंग में अपने न्यूट्रंट्स 12 होते हैं, अर्थवार्म इनको 6, जब अर्थवार्म इसको ब्रेक डाउन करते हैं काउ डंग को, तो उसमें से और ऐड हो जाता है वर्मस की तरफ से 6 न्यूट्रंट्स, हो गया 18, और 6 हैं पानी में और हवा में, तो ये फुल मिलता है इसको ये खाद पेड़ पौधों को। तो इनको केमिकल खाद की जरूरत पड़ती नहीं। और जो मैंने ये अखज़ किया है कि जब हम अपनी खाद इसमें इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में, तो ये सब्जी बहुत मीठी होती है, बहुत उम्दा सब्जी होती है और हाईली न्यूट्रिशियस सब्जी होती है। तो जो हम केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं वो सब्जियां बहुत कड़वी होती हैं, उनमें कोई टेस्ट होता नहीं है। अच्छा, उन जवानों के लिए या उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले ये सोचते हैं क्या मैं इसमें सक्सेसफुल रहूं या ना रहूं, या अगर मैं ये करूं तो वो हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी आती है उनमें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने आज तक यह अखज़ किया है कि अगर इंसान का शौक हो, जिस काम की तरफ इंसान की तवज्जो शौक हो, तो वो काम ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो यहाँ हमारे कुपवारा में मैं सोचता हूँ कि यहाँ जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, या पोल्ट्री है, या डेयरी फार्मिंग है, इसमें बड़ा स्कोप है यहाँ कश्मीर में, बहुत ज्यादा, स्पेशली हमारे कुपवारा में ज्यादा स्कोप है। क्योंकि आप देखिए हमें दूध सब बाहर से आता है, करीब करीब मेरे ख्याल में 90% दूध हमें बाहर से आता है, गोश्त हमें 90% बाहर से आता है, मुर्गे हमें बाहर से आते हैं, अंडे हमें बाहर से आते हैं। अगर हमारे जवान लिखे पढ़े जवान इस फील्ड में आ जाएं और इसकी तरफ वो ध्यान दें, तो कोई बड़ा मामला है नहीं, वो सरकारी नौकरी से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। पहले आपने स्टार्ट किया था एपीकल्चर से, उसके बाद आपने फ्लोरिकल्चर, अब आगे क्या इरादा है, या आज के टाइम में आप उसके उन दोनों के अलावा क्या क्या काम करते हैं? इस वक्त मेरे पास तो मैं बी कीपिंग करता हूँ, जो एपीकल्चर है हमारे पास, जिसकी हम प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं, पैकिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा है फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम सीडलिंग्स बनाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनाते हैं, तो सब्जियों की सीडलिंग्स भी बनाते हैं हम। तो उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा ये फ्री रेंज पोल्ट्री का, अल्हम्दुलिल्लाह 600 बर्ड्स हैं मेरे पास इस वक्त। तो 3-4 ये जो हमारे पास फ्री रेंज हैन है, इसमें भी 2-3 वेराइटीज हमारे पास कीस्टोन गोल्डन है अंडों के लिए, कड़कनाथ है हमारे वो ब्लैक है, उसका हाईली न्यूट्रिशियस अंडे होते हैं उनके, वो भी हम पालते हैं। असील मुर्गे हमारे पास, जो फाइटिंग मुर्गे, वो हमारे पास हैं। हमारे पास करीब करीब 10 से 12 वेराइटीज हैं कबूतरों की। तो उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर की जो लेटेस्ट जो हाइडेनिस्ट सुपर हाइडेनिस्ट एप्पल है, उसकी भी मैंने नर्सरी स्टार्ट की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफी काम है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा कोशिश करता हूँ ट्रेंड करने की। तो मेरी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को मैं ट्रेंड करूँ, ज्यादा से ज्यादा जवान इस फील्ड में आ जाएं। मेरी ये कोशिश है कि मैं जितने भी लोग आए मेरे पास, मैं उनको सिखाऊंगा। यहाँ तो बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, कोई कमी नहीं है यहाँ। लेकिन एक ही मामला है कि जवान खुद तैयार हो जाए पैसे कमाने के लिए, सरकार की तरफ से ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरी ये रिक्वेस्ट जवानों से कि डायरी किसको स्टार्ट करनी होगी, जरूरी नहीं है कि 10 गायें रखें, एक गाय से शुरू करें। पोल्ट्री शुरू करनी होगी तो 50 मुर्गियों से शुरू करो। हॉर्टिकल्चर का काम शुरू करना हो तो आप 10 मरले जमीन से स्टार्ट करो। फ्लोरिकल्चर का काम करो तो 5,000 से स्टार्ट करो। ये जरूरी नहीं बैंक से लोन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब इंसान एक ही वक्त में फर्स्ट में अगर इंसान कोई अपॉइंट हो जाए, एडमिशन लेता, तो एकदम वो 10वीं में नहीं आ सकता है, वो 12वीं में या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं आ सकता है। स्टेप बाय स्टेप अगर इंसान में हौसला हिम्मत हो, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। और उसमें नुकसान की मतलब इंसान को नुकसान नहीं हो सकता इस बिजनेस में, अगर इंसान स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे आगे आगे। हनी प्रोड्यूस करते हो, उसकी मार्केटिंग का क्या लोकल मार्केटिंग होती है, या ये कश्मीर के बाकी एरियाज में भी उसकी मार्केटिंग होती है? हमारा जो प्रोडक्शन है, हानी प्रोडक्शन जो हमारी है, जो हम यहाँ कश्मीर में हानी लेते हैं, तो हम तो यहाँ ही सेल करते हैं कुपवारा में ही।
جو ہم جموں اور راجستھان میں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہانی تو وہ وہاں سے ہی بیچتے ہیں ہم ہول سیل میں ہی व्यापारी آتے ہیں وہاں تو وہاں سے ہم اس کو وہ کرتے ہیں سیل یہاں تو میرے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ریٹیلنگ میری زیادہ ہوتی ہے اب کپوارہ بازار میں ہندوارہ میں میرا شہد اویلیبل ہوتا ہے تو سری نگر سے بھی آتے ہیں ہمارے پاس گاہک اننت ناگ سے بھی آتے ہیں سوپور سے آتے ہیں بارامولہ سے آتے ہیں اب تو 20-22 سال ہو گئے مجھے بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس یہاں کپوارہ سے لیتے ہیں شہد اور یہ ڈسٹرکٹ کپوارہ تو بہت پہلے سے ہی مشہور تھا شہد کپوارہ کا شہد بہت پہلے سے مشہور تھا یہ تو کشمیر میں مانا جاتا تھا کپوارہ کا شہد الحمدللہ اب تو اس کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہے اور لوگ کھاتے بھی ہیں اب لوگوں کو پتہ چلا کہ شہد میں شفا ہے اب دراصل لوگوں کے پاس زیادہ نالج بھی ہے علم بھی آیا ہے کہ شہد میں کتنا فائدہ ہے اب لوگ میرے خیال میں انگریزی دوائی کی طرف بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا دھیان اب انگریزی کی دوائی کی طرف کم ہے اور الحمدللہ دیسی دوائیوں کی طرف اور خاص کر جو ہے شہد کو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے میرے خیال میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور بہت زیادہ اب ڈیمانڈ ہے اس کی اچھا جو یہ ٹوٹل جو آپ کا بزنس ہے چاہے ایپیکلچر ہو یا فلوریکلچر یا اور بھی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں ابھی اس بزنس میں اس میں کتنے سارے لوگ ملوث ہیں قریب میرے ساتھ 9 لوگ میرے ساتھ پرمنٹ ہیں پرمنٹ بیسس پر 9 لڑکے میرے ساتھ کام کرتے ہیں تو باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر اب فروری سے ہمارا کام جب شروع ہو جاتا ہے تو فروری سے اینڈنگ جولائی تک ہمارے پاس ڈیلی ہوتے ہیں جو مزدور کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ 8 مزدور ہمارے پاس ڈیلی ہوتے ہیں 6 مہینے کے بعد وہ جاتے ہیں ریاست سے باہر تو اگلے سال پھر فروری سے ہمارا جاتا ہے کام شروع ستمبر اکتوبر تک تو سرما میں صرف یہ پروسیسنگ پیکنگ پر ہی ہوتے ہیں میرے 7-8 آدمی تو گرمیوں میں کافی لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ ہاں آپ کو کچھ ایوارڈز بھی ملے ہیں نیشنل لیول میں آپ کو ایک بار ایوارڈ ملا تھا کہ نمبر 1 ایک ایوارڈ مجھے ہانی پروڈکشن میں نے لیا تھا سب سے بڑا ایوارڈ یہ سال مجھے یاد نہیں ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے مجھے 2-4 ایوارڈز ملے ہیں مجھے فرسٹ انوویٹو فارمر آف جے اینڈ کے اسٹیٹ ایوارڈ ملا ہے تو ڈسٹرکٹ لیول پر میں نے 5-6 ایوارڈز لیے ہیں اور ایک ایوارڈ لیا تھا میں نے وہ بھی میں نے اسٹیٹ ایوارڈ ہی لیا تھا بلکہ آل انڈیا لیول کا وہ ایوارڈ تھا فرسٹ میری گولڈ گروور آف انڈیا لیا تھا میں نے ایک ایوارڈ تو پورے انڈیا میں اس وقت 50 کنال میں کسی نے میری گولڈ کی کاشت نہیں کی تھی میں نے پہلے بار کی تھی 50 کنال میں میری گولڈ کی کاشت اچھا اس لائیو سیشن کے بعد اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی بزنس اسٹارٹ کریں گے یا ہم بھی فلوریکلچر یا ایپیکلچر بزنس اسٹارٹ کریں گے تو ان کے لیے آپ کیا ہدایت دیں گے یا اگر اب آپ کے پاس کوئی آنا چاہے گا کچھ نہ چیزیں آپ سے سیکھنا چاہے گا ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہو گے وہ کیسے وہ آپ سے اپروچ کریں میری جناب یہ کوشش ہے اور میرا یہ مشن ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آؤں الحمدللہ میرا تو اپنا گھر میں تو سیٹسفائی ہوں میں تو بالکل مطمئن ہوں تو میں تو اس وقت بھی ایکٹیو ہوں میری عمر اس وقت قریب 60 سال ہے میں بالکل ایکٹیو ہوں جوانوں سے بھی زیادہ ایکٹیو ہوں میرے پاس کوئی سیکھنا چاہے کسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے میرے پاس آئے اس کو میں سکھاؤں گا یہاں کوئی اسکوپ کی کوئی کمی نہیں ہے خاص کر ڈائری میں یہاں بہت زیادہ اسکوپ ہے پولٹری میں زبردست اسکوپ ہے فری رینج پولٹری میں برائلر پولٹری میں نہیں فری رینج پولٹری میں بہت زیادہ اسکوپ ہے یہاں اور اس میں خرچہ بھی بہت کم آتا ہے یہ جو پولٹری آپ نے بولا کہ پولٹری میں کیا کیا آپ کے اقسام ہیں وہاں پہ میرے پاس انڈوں کے لیے میں نے رکھے ہیں مرغے کی سٹون گولڈن 300 انڈے دیتے ہیں وہ سال میں ابھی 1 جنوری سے سٹارٹ کیا انہوں نے انڈے دینے تو ایک دوسرے مرغے ہمارے پاس وہ کڑک ناتھ بلیک ان کا گوشت بھی ہوتا ہے بلیک اور ان کے انڈے ہوتے ہیں ہائیلی نیوٹریشس باہر ابھی تو ہم زیادہ بکری نہیں کرتے ہیں انڈے تھوڑے تھوڑے آتے ہیں ہمارے پاس تو ایک ہے ہمارے پاس اصیل مرغے وہ فائٹنگ برڈس تو باقی جو ہماری دیسی مرغے وہ بھی رکھے ہیں ہم نے کبوتر رکھے ہیں ہم نے مختار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ